Okay, good evening everyone. So today our agenda is to complete around 11 to 12 chapters. So first we will be starting with the DPSP, then moving towards the FD amendment and the basic structure, and then we will have the another session of next 4 chapters. Okay, so first we are starting with the DPSP. Now anyone can answer questions from the DPSP. DPSPs are taken from which constitution? Ireland. Irish Constitution. Correct. And they are contained in the which part and article? Part 4, 36. Part 4 from 36 to 51. Okay, correct. So what are the basic features of the DPSP? They are non-justiciable. They are also not enforceable, and No, they they are act rights. as They are the guidelines. They They cannot act as the be guidelines, right? enforced. Okay, so they are the basic guidelines to the executive and legislature, and there are not limitations upon them. Then again, they are not enforceable, and also they act as a beacon. And if you have to just check out the constitutional validity, so you can go through the DPSPs. So that will act as a yardstick for the same. And after that, if I say that the Constitution has divided the DPSPs into 3 parts, that is like Gandhian, socialist, and intellectual liberal. So this statement is true or false? It is false. No, Constitution में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है. इस तरह का डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं किया गया है. हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से उसको डिवीजन इसमें किए हुए हैं. Exactly. So Constitution has mentioned nothing as such the classification. They are adopted simply. Okay. After that, anyone can tell कि socialist, Gandhian and intellectual liberal में एक में कौन से articles आते हैं, and also please if one is speaking then don't just interrupt in between, wait for him to close and then you can begin with. Okay, so the question is simple. तीनों जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन सा आर्टिकल कंटेन्ड है? सोशलिस्ट वाला जाएगा आर्टिकल 38 जैसे है कि उसमें वेलफेयर स्टेट के बारे में बात की गई है टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट विल बी देयर. गांधीयन वाले में अपना हो जाएगा विलेज पंचायत वाला, है ना, जिसका आर्टिकल होता है 40. और लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले में हो जाएगा अपना वो यूसीसी जो 44 में होता है. Okay, correct till now. Anyone wants to add, because he have left many articles. So anyone can add on? गांधीयन जो है वो तो है आर्टिकल 40 which is related to organization of village panchayat, 43 which is related to living wage, और फिर 46, 47, 48 ये 3 कंटिन्यू है. लिविंग वेज वाला सोशलिस्ट है. अच्छा 43 में एक जो कोऑपरेटिव वाला है, आई थिंक वो वाला पार्ट है. Cooperative and cottage. हाँ. ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है क्या होते हैं ऐसे कुछ डिवीजन वगैरह कौन से आर्टिकल में है? Speak again. ये जो डिवीजन है 3 टाइप के, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल, कौन से आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के? कोई आर्टिकल में मेंशन नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये. ओके, ठीक है. Anyone have the PYQs of the DPSP, so we can go through that only. That will be completed even. Okay, so there is one question. जो international agreements का एक article है, what is the article number of that? Article 51. International peace.
Article 51. 51. Okay, so Article 51 is Gandhian. True or false? False. It will be under फॉल्स, liberal intellectual. ये इंटेलेक्चुअल वाला में होगा ये। Correct. It will be under the intellectual and legal. Okay, one more question. The UCC is classified by the Article 39 will fall under the Gandhian principle. True or false? False. फॉल्स है, फॉल्स, ये इंटेलेक्चुअल वाला में आएगा, सोशलिस्ट वाला में आएगा। ये लिबरल Intellectual में वन। आएगा, intellectual Okay, में so आएगा। if I say that UCC is under the Article 39 and is classified under the liberal intellectual, now it is correct? Again, it is Article false 40 because article will be 44. ये आर्टिकल 44 में है ना। Yes. Okay, so it is under Article 44 UCC and it will come under socialist intellectual liberal. Okay. And how many articles are there which are added by the amendments in the DPSP? Like, if anyone can tell the broad themes of those articles which are added through the amendment. Ma'am, Article 43A and 43B. 43A is added by 42nd Constitutional Amendment of 1976, and 43B is that is promotion of cooperative societies through the 97 Constitutional Amendment. And coming to the Article 45, the promotion provision for early childhood care and education, that is right to education, what we call that is through 86th Constitutional Amendment of 2000. So I recall only these three. ओके, हाँ, 40 सेकंड से मैं बताता हूँ। एक तो हम अपन ने 39 में ऐड किया है टू सिक्योर फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद हमने 40 सेकंड से ऐड किया 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। उसके बाद 40 सेकंड से अपना 43A है टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। उसके बाद है 40 सेकंड से 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और 44 से हमने ऐड किया है 38 में, उसका नाम है स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। बाकी सबने बता दिया है। Okay, correct. Now anything left in DPSP or shall we move to FD? If anyone have any PYQs, for 5 minutes we can discuss those PYQs. एक PYQ इसी पे आया था कि हमने 40 सेकंड से इनमें से कौन सा DPSP ऐड किया है, तो याद रखना उसको। मतलब इस टाइप से उन्होंने पूछा है, तो 40 सेकंड 44 का उन्होंने कंफ्यूज करके दे रखा था, तो ये याद होना चाहिए। मतलब यहाँ से पूछता है मेन बात वो। 44 को तो नहीं ऐड किए थे 40 सेकंड। State of income was added by the 44th Constitution Amendment 1978. Status of income वाला जो है वो उससे ऐड हुआ था। Okay, so basically 4 amendments आए थे, 42, 44, 86, 97. 97 stands for the cooperatives, 86 for education, 42 में काफी है and 44 में income and status है. Okay, and rest things are simple in this chapter. So now we are moving towards the fundamental duties. So the first question from the fundamental duties, it is taken from which constitution? And the next question is the fundamental duty was added through which amendment? ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था ये हमारा, और ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अच्छा, एक स्टेटमेंट बताना, नो अदर कंट्रीज देन इंडिया हैव फंडामेंटल डेमोक्रेटिक कंट्री हैव फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू और फॉल्स? False. Japan. फॉल्स। हाँ, जापान का अपने से पहले था शायद ना, ऐसा कुछ है ना। Yeah. अच्छा, अमेंडमेंट हुआ एक एफडी के अंदर, कब हुआ है और क्या अमेंडमेंट था? 86th Amendment 2002. The same goes with the education part जो है 6 to 14 तक की education का उसमें डाला। ठीक। Similar to fundamental rights, these are applicable to both citizen as well as non-citizens. True or false? Only citizens. To every citizen of India, not foreigners.
right to vote and pay income tax is a FD. True or false? False. It was in the recommendation, but it is not, guaranteed in the fundamental duty. हाँ, ये रिकमेंड किया था उन्होंने, जो सर ने बोला ना, कमेटी थी जो अपन की, मतलब टैक्स वाला, बट वोट वाला तो कुछ बोला ही नहीं तुमने, तो ये नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो राइट टू वोट हमारा क्या है? लीगल ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब लीगल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल है सर। यूपीएससी क्या माना है? Under Article 326, it is constitution. सर देखो, अच्छा, जो तो कॉन्स्टिट्यूशन मैं बताता हूँ ना, देखो 3-4 टाइप के राइट होते हैं अपने। एक तो लीगल होता है, एक फंडामेंटल राइट हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जो फंडामेंटल राइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल कैटेगरी है, आप रेट वगैरह डाल सकते हो। बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि आप जो राइट टू वोट बोल रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, लीगल भी। अगर ऑप्शन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आपको लीगल करना चाहिए। अगर ऑप्शन में दोनों है तो फिर आपको पहली प्रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन को देनी चाहिए। मेन बात वो है। ये PYQ में आया था, तो यूपीएससी इसको क्या माना था, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल? यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशन ही माना है इसको, और वो है भी सही। ओके, अच्छा ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हम 2 सेंटेंस बोलने हैं, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। फंडामेंटल ड्यूटी आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटी। फॉल्स। हेलो, हाँ ये फॉल्स है, हाँ ये फॉल्स है। ठीक है, ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन फॉल्स। हाँ ये फॉल्स है, ये PYQ का था ये। अच्छा, तो ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी आया था? स्वर्ण सिंह कमेटी। ये जो बात सर ने लास्ट स्टेटमेंट बोला था, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, वो तो प्रोसेस तो है ना, हमने कानून बना रखा है ना कि नेशनल एंथम को कोई हार्म करेगा तो वी कैन पनिश दोस थिंग, तो वो फॉल्स कैसे है फिर? एक मैं लाइन बोलता हूँ सर, दे आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, hence the parliament can provide for the imposition of appropriate penalty and punishment for failure to fulfill any of them. Akash, wait. Akash, hello. Akash, are you listening me? Hello, this is Salman. So guys, why are you not speaking in English? All of are there in Hindi medium, or otherwise, or why should you guys speaking in Hindi? अरे हिंदी में थोड़ा जल्दी हो जाता है भाई, यहाँ सब इंग्लिश, मैक्सिमम लोग यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं। तो हिंदी में हो तो जाता है, तो आगे जाके तो आप सबने इंग्लिश में बात करनी है ना। मैं भी हिंदी मीडियम ही हूँ भाई, सॉरी इंग्लिश मीडियम ही हूँ मैं भी। तो अभी थोड़ी आदत बना लो, कोई बात नहीं यार, टेढ़ा बोला जाएगा, कैसे ही बोला जाएगा, आगे जाके इंग्लिश में ही बोलोगे आप सब। अरे कोई बात नहीं, पीटी के बाद फिर बहुत टाइम मिलेगा भाई ये सब चीज करने के लिए। वो अदरवाइज क्या है ना कि लोगों का पार्टिसिपेशन और भी बहुत कम हो जाएगा। मैं फोर्स नहीं कर सकता, मैं एज एडमिन फोर्स नहीं कर सकता किसी को, बट मैं सलाह दे सकता हूँ कि अगर अभी आदत बनेगी तो भी जाके आगे कुछ रहेगा। आज कल सर हाँ, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करते हैं, मिक्स कर लेंगे। चलो कीप कंटिन्यू, कोई बात नहीं। ओके, अरे हाँ, मैं वो पूछ रहा था, जो सेकंड लाइन बोली थी प्रभात सर ने, ही सेड समथिंग ना कि दीज आर क्या मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं, मतलब तो पर्टिकुलरली फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने के लिए ऐसा कोई लॉ स्पेशली उसकी नहीं है। हाँ, मतलब कोई साइड से कुछ और भी, मतलब कोई दूसरा लॉ आया है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है फॉरेस्ट के राइट के लिए, वो सब चीज है, लेकिन स्पेशली फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने के लिए कोई लॉ नहीं है। इसका आंसर यूपीएससी भी इसको फॉल्स माना है। मतलब उसके लिए कोई लेजिस्लेटिव प्रोविजन नहीं है, प्रोसेस नहीं ऐसा है कि प्रोवाइड किया गया है टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। यस सर, और लक्ष्मीकांत में ऐसा लिखा है कि पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन, तो अभी नहीं है प्रेजेंट में, बट कैन प्रोवाइड। हाँ, वो तो कैन प्रोवाइड, वो तो उसके पास अथॉरिटी है ही। Actually, I'm unable to understand, but I got one thing, like, UAPA can be like, we can call it as an illegal provision to implement fundamental duties, right? UAPA.
Hello, am I audible? Yeah, can you repeat And your also, point? I got from your discussion that there is no legal act regarding the enforcement of fundamental duty. So I brought in, the UAPA of 1967 Act, which provides for the declaration of a communal organization as unlawful association. And also we have certainly the National Honor Act of 1971. So it prevents disrespect to the Indian Constitution and national flag and the national anthem. So we can say that there are legal provisions for the implementation of fundamental duties as well. This is what I am saying, but प्रभात sir, that line is different. Sir, एक बार आप second line को दोबारा repeat कर सकते हो क्या? Question की जो आपने पूछा था. क्वेश्चन है यूपीएससी का क्वेश्चन है ये. Which of the following statement is or are true of the fundamental duty of an Indian citizen? पहला स्टेटमेंट है a legislative process has been provided to enforce these duties. ये ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस दिया गया है, ऐसा कोई है? एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, उसका ऐसा तो नहीं है. हाँ वही कर. तो ये स्टेटमेंट को फॉल्स माना यूपीएससी. कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए कुछ अलग अलग करके बनाए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनिमल के लिए एक्ट है, पोल्यूशन कर मतलब क्या मतलब क्या फ्लैग उलैग हो गया, या फिर नेशनल प्रॉपर्टी वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए मतलब एक्ट है, लेकिन पर्टिकुलरली फंडामेंटल ड्यूटी के नाम पे कोई एक्ट नहीं है, हम ये बोल रहे हैं. ट्रू, यू आर राइट प्रभात. देयर इज नो एनी एक्ट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ड्यूटी. या बट Arvind, there is a one advice. Please, whenever you speak, please speak politely and slowly. Understand? No matter whether you use English or Hindi, but speak politely so other person also can understand your word. Hello, Arvind Swami Koram. फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कौन सा आर्टिकल है? ये राइट. Okay. Yeah. Keep continue, guys. पार्ट में कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 4 ये. याद है, पार्ट 4A है ये हमारा. ठीक है, सोन सिंह हो गया. Okay, I will say a statement. Just say true and false. Rights and duties of the citizens are correlative and inseparable. True. Yeah, it is true. Yeah, true. Correct. एक क्वेश्चन है, पेइंग इनकम टैक्स इज ए फंडामेंटल ड्यूटी. इज इट ट्रू और फॉल्स? False. It is repeat. Question repeat. Paying to pay the income tax, is it a fundamental duty or not? Yes, it is a fundamental duty. No, it is not fundamental duty. No. I think I read somewhere. It was a nice question. So it's a fundamental duty. Not implemented. You have read under wrong. 42nd amendment. Okay. Nice question. Paying income tax is not a fundamental duty. Okay. Ask another question, please, guys. अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी को रिट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है कि नहीं? किसके द्वारा? रिट फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं. No. अरे यार, आई एम बिजी यार अगेन. बाय बाय गाइस. अच्छा, एक क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, इज इट द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और नॉट? Not. False. Protecting the weaker section from social injustice, is it part of the fundamental duty or not? It is not a part of fundamental duties.
हाँ नहीं। अच्छा, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, हाँ ट्रू। इज इट द पार्ट? हेलो, Yes, true. मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज और नॉट? या लेक्स रिवर्स सब कुछ आएगा इसके अंदर। हाँ, Have नहीं। come- हाँ, correct, sir. ये है लास्ट टाइम, मेरी आवाज आ रही है यार? हाँ, लास्ट टाइम वो चंडीगढ़ के शुरू हुआ था ये सुखना लेक से टॉपिक। अच्छा, एक क्वेश्चन है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन प्रिम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, एफआर एंड एफडी। किसमें है ये? फंडामेंटल ड्यूटीज। वन और मोर मे बी करेक्ट। हेलो, Fundamental duty and preamble also. ठीक है, प्रियम्बल एंड FD। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, एफआर एंड एफडी। Fundamental duty, and it is the third fundamental duty which was added by the 42nd Amendment. So third duty है ये, SUI, sovereignty, unity and integrity. Yeah, it is only mentioned in fundamental duty. ठीक है, अब हो गया, कुछ और तो ऐसा कुछ है नहीं फंडामेंटल ड्यूटी में। अच्छा, एक क्वेश्चन, Right to hearing is in which article? राइट टू Hearing. Please speak out the question again. Right to hearing is in which article? can you say the spelling, sir? Right to what? HEARING. Fundamental right. Not related to fundamental duties at least. ये क्वेश्चन ऐसे मत डालो बीच में। 32 में Am I है audible? रिट पिटिशंस वगैरह। One is not. Sir, can you please mute your mic, Robinson? चलते हैं अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। सर जो नहीं बोल रहा वो म्यूट कर लो यार अपने आप को, बहुत ट्रैफिक आवाज है प्लीज। Okay, just wait, everyone. For 11th your mic. इसका जो Off 11th your mic. Just wait a second. क्या है, So तो कौन से अमेंडमेंट से आया था? the question was right to hearing will come under HEARING, मतलब सुनने का अधिकार something, ठीक है? तो that will come under which article? This was the question. So suppose in that case I am giving you 4 options: Article 14, 19, 21, 28. Now please try to answer this question first. It would be under Article 21. Right to life. Okay, so this was the question. Okay, Robin, I have asked your question. Now please move on to another chapter, and also please, those who are not speaking, just mute yourself. Please, it is a gentle request. Please mute yourself. सबने म्यूट कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर अमेंडमेंट वाला है ना, क्या नाम है कंप्लीट? Yeah, next is on amendment. ठीक है, तो यूएस की तरह अपने यहाँ भी ये यूएस में वो है ना प्रोविजन है कि हमें कमेटी बिठाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी करके अमेंडमेंट से पहले। अपने इधर कुछ ऐसा प्रोविजन है कि नहीं है?
No. India में only parliament is the supreme body for the constituent like ना जो constitution को constituent power को दी गई है so that they can just amend the topics, but unlike here US में there is another committee, यानी parliament से अलग एक committee है जो कि वो काम करती है. There is no role of any state government in any type of amendment in the constitution. True or false? True. फॉल्स. False है यार, करते हैं ना, कुछ प्रोविजन होते हैं जो फेडरल से लिंक है, तो दे तो हैव होता है सम कि रोल 50% देयर. जहाँ पे फेडरल कैरेक्टर चेंज होता है वहां पे तो 50% स्टेट से भी मतलब उसको पास होना होता है. हाँ जैसे सर, बिल्कुल सही बताया. एग्जाम्पल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन. Yes, yes. Thank you, thank you. तो नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं. अरे ये अगला ही तो चल रहा है सर, अमेंडमेंट वाला. ये अमेंडमेंट में आ गया. अच्छा अच्छा ठीक है. ज्वाइंट सीटिंग में कौन सा अमेंडमेंट से पास होता है? सर सिंपल से होगा, मतलब सिंपल मेजॉरिटी. अच्छा अच्छा, कुछ पर्टिकुलर टाइप की बिल जो है मतलब वो ज्वाइंट सीटिंग में मतलब कि उसको नहीं लिया जाए, उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा. वो किस किस टाइप की बिल है? मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दोनों बिल है, जॉइंट पास नहीं हो सकते. एग्जैक्टली. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का ऑर्डिनेंस से हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं. नो. क्यों नहीं कर सकते? आंसर ठीक है, नहीं कर सकते. लक्ष्मीकांत में दिया हुआ नहीं कर सकते, बट मुझे रीजन नहीं पता लगा कि ऐसा मतलब क्यों नहीं होता. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने के लिए 2 हाउसेस से जाना पड़ेगा. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सिटिंग भी नहीं रहता. ऑर्डिनेंस के लिए सिर्फ एक हाउस ऑर्डिनेंस को, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2 हाउस से सेपरेटली हमें पास करना पड़ेगा. इसीलिए ऑर्डिनेंस से हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते. ऑर्डिनेंस से बेसिकली अमेंडमेंट करने का जरूरत ही नहीं है ना. हमें जो चीज चाहिए हम उस चीज के लिए ऑर्डिनेंस ला देंगे और फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में फिर अमेंडमेंट कर देंगे. उसका वो है कि 368 में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो. जो स्पेशल प्रोविजन है वो 368 में मेंशन है, तो ऑर्डिनेंस वाला लाइव वहां पे नहीं है, तो इसलिए हम कर नहीं सकते. मैं प्रेसिडेंट्स को यूज नहीं कर सकता. अच्छा कुछ ऐसा मुझे अच्छा, मिला एक होगा. अच्छा अच्छा, शेड्यूल बताना है. नाइन्थ शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट से आया है? फर्स्ट अमेंडमेंट 10th एंटी डिफेक्शन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985. और 11th और 12th 73rd 74th. ईयर कौन सा? ईयर 92 93 में भी इन बिटवीन. 92 पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. आई थिंक दोनों 92 में ही है. 73rd 92. 74 जो है मतलब ये मतलब बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं हम, मतलब वो 92 नहीं, वो 93 में आया है. 74 वाला 73rd और 74 जो हमारा है. अच्छा, एक लाइन बोलूंगा मैं, तो आप बताना मैं कौन से अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ. Supreme Court has struck it down because it violates the independence of judiciary. 99 वाला जो है NJAC वाला, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला ना. हाँ करेक्ट सर. जीएसटी काउंसिल जो बना था ये कौन सा अमेंडमेंट से आया था?
101। हाँ सही है। और ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो 103। बाकी लोग अच्छा, एक आया था नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस आया था, उसके लिए कौन सा था? 102 उसमें आर्टिकल 338B इंट्रोड्यूस किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, स्टैट्यूटरी था पहले बैकवर्ड क्लासेस का, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था 102 अमेंडमेंट। हाँ हाँ। ऐसे जो सर आपने जीएसटी बोला, वो कौन से, उसके लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए? वो जीएसटी के लिए वो तो 3/4 मेजोरिटी मतलब चाहिए स्टेट से, कोई भी उसमें चेंज करने के लिए। नहीं, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ रहे हो या फिर वैसे पूछ रहे हो सर? जीएसटी जो काउंसिल आया था, हाँ उसी का बता रहे हैं। जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिया जाता है मतलब कुछ, तो शायद आई थिंक वो 3/4 मेजोरिटी से लिया जाता है ना। एक बार चेक कर लेना आप लोग प्लीज। नवीन सर सही बोल रहे हैं ना हम? अरे सही है सर, सही है, बिल्कुल आपका सही है। 2/3 होगा सेंटर का, नहीं 1/3 सेंटर का होगा, 2/3 स्टेट का कंबाइंड होगा। मतलब उसमें टोटल जो वोटिंग शेयर जो है सेंटर के पास 1/3 है और स्टेट के पास 2/3 हमारा है। और हर एक स्टेट का जो है हर एक स्टेट का इक्वल शेयर है, चाहे गोवा, चाहे मणिपुर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों का वोटिंग शेयर सेम रहेगा। पॉपुलेशन मैटर नहीं करेगा। अच्छा, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन सी मेजोरिटी होती है? कौन सा इलेक्शन? ये जो नॉर्मल इलेक्शंस नहीं होते हैं लेजिस्लेचर वाले। इसको लगता है आज ही पढ़े। सिंपल मेजोरिटी। हाँ, और अगर किसी पार्टी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी हो तो क्या मतलब, ये क्वेश्चन क्या है? तो करो। हाँ, मतलब कौन सी मेजोरिटी यूज होगी अगर किसी पार्टी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी हो? वो तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है ना। हाँ जी सर, 50+। हाँ एब्सोल्यूट। गवर्नमेंट को बचाना है तो 50 एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया जाता है। अच्छा, अभी कोऑपरेटिव जो बना था, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो आया था, या फिर कोऑपरेटिव वाला जो ऐड किया गया था 43B में डीपीएस में, ये कौन सा अमेंडमेंट से किया गया है? 97। ओके। और क्या है? अच्छा, हमारे प्रिम्बल में अमेंडमेंट के द्वारा कुछ वर्ड ऐड किए गए हैं। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा क्या क्या वर्ड ऐड किया गया है बताइए। एक बार ऐड हुआ है सर 40 सेकंड से, सेक्युलर वर्ड हुआ, एक इंटीग्रिटी हुआ, एक सोशलिस्ट हुआ, 3 वर्ड हो गए। हाँ सही है सर। ओके, ये ज्यादा फैक्चुअल पूछेगा नहीं। जो अपनी जॉइंट सीटिंग हुई है ना अभी तक 3 बार हुई है शायद, जहां तक मुझे याद है। तो कौन कौन से एक्ट में हम लोगों ने जॉइंट सीटिंग को किया है हम लोगों ने अभी तक? एक आई थिंक डाउरी एक्ट वाला कुछ आया था, और कुछ एक पोस्ट ऑफिस वाला कोई बिल था कुछ, एंड एक बेनामी ट्रांजैक्शंस के लिए। हाँ बेनामी के लिए नहीं हुआ, क्या नाम है उसके लिए नहीं हुआ शायद। एक बैंकिंग बैंकिंग डाउरी के बैंकिंग हुआ आई थिंक कुछ। हाँ डोरी वाला है, बैंकिंग रेगुलेशन है,
और एक और है सर, आपने जो बोला था वही है। बैंकिंग, डाउरी और एक अभी क्या बोले थे हम? एक कुछ बोले बैंकिंग वाला था, एक इंश्योरेंस का क्या? नहीं नहीं, इंश्योरेंस नहीं। टेररिज्म। क्या? पोटा वाला। अच्छा, पोटा। Prevention of Terrorism Act. So POTA होता है या हाँ, 3 है, मैं पढ़ देता हूँ, नाम मेरे को मिल गया। पहला है डोरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में आया था ये। उसके बाद है बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977। फिर है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, 2002 का ही। तो 3 बार अभी तक अपन लोगों ने किया है ये। और तो आर्टिकल 368 है, ये कौन से पार्ट में मेंशन है? 20 South Africa. Okay, now let us start with the basic structure. तो कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। तो कहाँ डिफाइन है सर? कौन सा मतलब ये तो जजमेंट है? ये केशवानंद भारती केस आया था, उसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को बताया था, लेकिन उसमें भी क्लियरली डिफाइंड नहीं था। ओके। मतलब स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, मतलब वो डिपेंड जजमेंट पे करेगा। मतलब वो जैसे मतलब जिसका है ना, डेमोक्रेसी हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, मेजोरिटी पार्टी रूल हो गया, ये सब इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। उसी टाइप से वो लोग जजमेंट से अपना इन्फेरेंस निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एक गोलकनाथ केस था। तो बेसिकली आप लोग ये बता दीजिए कि गोलकनाथ केस में मतलब क्या बोला गया था, किस चीज से रिलेटेड है? ये अपना मौलिक अधिकार में संशोधन में। हाँ, मैं पूरा पॉलिटिक्स बता देता हूँ। गोलकनाथ में कुछ चैलेंज हुआ था, मतलब उससे पहले दुर्राई चंकम राजन केस था ना, उसमें बोला था कि आप फंडामेंटल राइट्स को कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फिर गोलकनाथ में भी चैलेंज हुआ, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टैंड को चेंज कर लिया कि आप एफआर को नहीं कर सकते, ब्रिज नहीं कर सकते। तो उसके काउंटर में फिर जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया था वो 24th अमेंडमेंट लेके आए थे। उनमें आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट किया कि उसको हम जो अमेंडमेंट करेंगे उसको लो नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम कोई भी फंडामेंटल राइट टेक अवे कर सकते हैं 368 के अंदर। तो फिर अपना ये केशवानंद भारती वाला जजमेंट आया था, जहाँ बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह ऑल दैट कम इनटू पिक्चर। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो जो 9th शेड्यूल आया था वो कब डाला गया था जुडिशियल रिव्यू के अंदर? वो बोला था कि ये 2007 के अंदर बोला है कि एनीथिंग आफ्टर 1973 जुडिशियल रिव्यू। हाँ जी सर, करेक्ट। क्या है केस 1973 बोला गया है ना उसमें? जी सर, वो 2007 का जजमेंट है, लेकिन कोई भी चीज जो आपने 1973 के बाद किया है ना, उसका हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ओके ओके, हाँ। अच्छा, ये जो 13 है अपना,
उसमें ये लिखा हुआ है ना कि लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसमें नहीं 30 नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, यही है ना? आर्टिकल 13 डिफाइंस लॉ, आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट। हाँ सर, जो आप बोल भाई रहे हैं वो क्या फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन नीचे दिया है उसके अंदर, तो उसमें ये अभी भी मेंशन है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो लॉ के अंदर नहीं आएगा, तो ये सही है क्या नहीं है अभी तक ये बताओ मुझे पहले तो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ के अंदर नहीं आता, बट नहीं आता ना बेसिकली, हम अरे मैं कंफ्यूज तो हैं। पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं आता आता सर, बोल के पक्का था। हाँ नहीं आता सर। एक्चुअली ये हुआ, उन्होंने लिखा था पार्लियामेंट ने, ये वाला जो बात है ना लॉ वाला, वो 24th अमेंडमेंट में ऐसे किया था। ये 71 में किया था इन्होंने 24th अमेंडमेंट, तो उसमें 13 आर्टिकल और 368 में ये लोग अमेंडमेंट कर दिए। फिर 73 में जो केशवानंदी भारती वाला जजमेंट आया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि उसको तो कैंसिल नहीं किया जो 13 में लॉ डिफाइन किया है, बट ये बोला कि चैलेंज हो सकता है। मतलब दोनों चीजें है यार, अभी मेन बात वही है, एम्बिग्यूस टाइप है ये सिस्टम, बट चैलेंज वी कैन चैलेंज द थिंग्स। वोटिंग एज कौन से अमेंडमेंट से रिड्यूस हुई थी? 61st 69 16 हाँ 61st 1989। सही है। हाँ जी Yes, सही है, yes. 61। अच्छा एक स्टेटमेंट बोलूंगा तो बताना ट्रू या फॉल्स है। The constitutional amendment bill can be introduced either by a minister or by a private member and requires prior permission of the president. ट्रू नहीं फॉल्स है, प्रेसिडेंट का नहीं, जरूरत ट्रू ट्रू है। फॉल्स है सर, इसमें ना does not require prior permission of president। अरे यार हम उस पर ध्यान ही नहीं दिए ये। बाकी ये हाँ जी सर। और दूसरा एक और स्टेटमेंट है, हाँ मतलब प्रेसिडेंट मस्ट गिव द एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ट्रू। हाँ ये ट्रू है। तो ये चीज याद रखना कि इसमें परमिशन नहीं चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, और उसको एसेंट भी देना पड़ेगा। लेकिन मनी बिल में क्या कि परमिशन से वो मतलब ले आते हैं मनी बिल, और उसके बाद फिर भी एसेंट देना पड़ता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ मैन नोट ऑफ लॉ, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है? प्लीज रिपीट। गवर्नमेंट ऑफ मैन एंड नोट ऑफ लॉज, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है? नहीं, तो क्या है फिर? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ऑफ लॉ, गवर्नमेंट ऑफ मैन नहीं, गवर्नमेंट ऑफ लॉ होना चाहिए। इट्स अदर वे अराउंड, गवर्नमेंट ऑफ लॉज नोट ऑफ मैन, नॉट ऑफ मैन, मतलब रूल ऑफ लॉ, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये इंदिरा गांधी केस में बोला था 1975 में, पॉपुलरली नोन एज इलेक्शन केस। और ये जो रूल ऑफ लॉ है कौन से आर्टिकल कवर करता है इसे? आर्टिकल 14। हाँ जी सर, करेक्ट। नेक्स्ट चलें हम।